ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پورے مہینے میں، حاجت کے، توبہ کے اور قبولیت کے 3 نیت کرنی ہے۔ حاجت، توبہ اور قبولیت، یہ 3 نیتیں کرنی ہیں ربیع الاول کے پورے مہینے میں۔ کسی وقت بھی نفل پڑھ لیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جو اوقات مکروہ نہیں ہے اس کے علاوہ جس وقت چاہیں پڑھیں، اور اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے، بس صرف ایک چیز، اور اس میں کچھ نہیں مانگنا، یہ میری منت ہے۔ میں اپنے ہر عمل میں کہتا ہوں ہر چیز مانگو، لیکن ربیع الاول کے اس عمل میں کچھ بھی نہیں مانگنا، کچھ بھی نہیں مانگنا، اور صرف ایک چیز مانگنی ہے، اور وہ مانگنا یہ ہے کہ یا اللہ کملی والے کا عشق عطا فرما، بس کچھ بھی نہیں مانگنا۔ اے اللہ مدینے والے کا عشق عطا فرما، بس صرف ایک مانگ، اور مانگنا گڑ گڑا کے ہے۔ اور مانگنا کس طرح ہے؟ گھر میں بچے بلک رہے ہیں، ذرا نقشہ میں کھینچ رہا ہوں، غور سے سننا۔ گھر میں بچے بلک رہے ہیں، میں باہر سے آیا، مزدوری نہیں ملی، سارا دن مزدوری ڈھونڈتا رہا، گھر میں آیا تو بچے بلک رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، اور بچے لپٹ گئے، ابا روٹی لیا، اور 2 دن کے بچے بھوکے ہیں، اور میں پریشان ہوں۔ اب میں نے سوچا کہ آخر کیا کروں، نفل پڑھوں، اور نفل پڑھ کے میں کیسے مانگوں گا بچوں کے لیے روٹی، اور ادھر بچے رو رہے ہیں، اور کوئی گلبلا رہا ہے، کوئی بلبلا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، پریشان ہے، اور ہماری بھوک تو چلو کوئی بات نہیں برداشت، ان بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ان کا رونا، ارے ان کا رونا تو میرے کملی والے کو ایسا تھا کہ میرے آقا اپنی نمازیں مختصر فرما لیا کرتے تھے۔ سوچو اس وقت اس نفل کا اور اس مانگنے کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا اپنے دل کے اندر سوچیں تو صحیح، کیا ہوگی، کیا ہوگی۔ میری والدہ فوت ہوئی، میرے ہاتھوں میں ان کا سر تھا اور ان کی ہچکی نکلی، میں نے والدہ کی میت کو لٹا کے فوراً وضو کیا تازہ، اور میں نے نفل پڑھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ کی ترتیب ہے کہ جب کوئی عزیز فوت ہو فوراً نفل۔ اب مجھے وہ نفل آج نہیں بھولتے، میری اماں کی میت میرے سامنے پڑی ہے، میری اس کمی کوتاہی کی زندگی میں ان کا ہاتھ ہے۔ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے، طارق جب تو میرے پیٹ میں تھا نا، میں ساری رات سردیوں کی کھلے صحن میں رضائی لپیٹ، کمبر لپیٹ کے میں تیرے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی، اور فرماتی تھی ساری رات مجھے بعض اوقات، سردیوں کی رات تو لمبی ہوتی ہے، پہاڑ کی رات ہوتی ہے، مجھے ساری رات گزر جاتی تھی، اور میں اللہ سے ایک کہتی تھی، یا اللہ مجھے پتہ نہیں میرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن جو آئے اس کے ذریعے سے دنیا کو رنگ دے۔ طارق دیکھ، میں نے تیرے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ میری جب والدہ کی میت میں نے رکھا، ان کو لٹا دیا، بہن بھائیوں کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے تھے، تو میں نے فوراً مصلی لیا اور نفل پڑھے۔ اس نفل میں جو اللہ سے مانگنا مجھے آیا نا، تو وہ کیفیت آپ سامنے رکھ لیں۔ 2 نفل اس سارے ربیع الاول میں ایسے پڑھے جن 2 نفلوں کے اندر صرف عشق ہو، اور کملی والے کا عشق ہو، بس کچھ نہ ہو، نہ اماں ہو نہ ابا ہو، مرشد بھی نہ ہو، اور کہاں ایسے کروڑوں مرشد، ان کی چوٹیوں پہ قربان۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا،
अपनी मिसाल आप है यारान मुस्तफा, मेरे 1000 दिल हों तसद्दुक हजूर पर, मेरी 1000 जान कुर्बान मुस्तफा। वाह सबके मौलाना जफर अली खान, अल्लाह तेरी कब्र को नूर से भर दे। वाह क्या कमली वाले की शान। मेरे 1000 दिल हों तसद्दुक हजूर पर, मेरी 1000 जान कुर्बान मुस्तफा। ऐसे लाखों मुर्शिद आए गए। उस वक्त मुर्शिद भी नहीं, अम्मा भी नहीं, अब्बा भी नहीं, दौलत भी नहीं, दुनिया भी नहीं, औलाद भी नहीं, रिस्क भी नहीं, बल्कि मैं आपको एक चीज कहूंगा, जन्नत भी ना मांगना। मेरे आका के इश्क में लाखों जन्नतें पड़ी हैं, नहीं पड़ी तो एक जन्नत की बात करता है। अरे आशिक को जो जन्नत मिलेगी वो आम मोमिन को नहीं मिलेगी, मुसलमान को नहीं मिलेगी, जो आशिक को जन्नत मिलेगी। बस सिर्फ इश्क मांगो, या अल्लाह कमली वाले का इश्क अता फरमा, इश्क अता फरमा। मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री इश्क होती है, याद रखना। मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, आखिरी डिग्री, वो इश्क होता है। इश्क, मेरे आका का इश्क मांगना, या अल्लाह इश्क अता फरमा। और कहना अल्लाह इश्क कहते कितने हैं, कोई खबर नहीं, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना, या अल्लाह मुझे बस इश्क दे। इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आ मिलेगा। न हमने जाना कि वस्ल क्या है, न हम ये समझे विसाल क्या है, पता कुछ नहीं है, लेकिन यार की तमन्ना है। तो अल्लाह से एक चीज मांगनी है, या अल्लाह कमली वाले का इश्क अता फरमा। मुझे कोई खबर नहीं कैसा होता है, किस तरह होता है, मैंने फिर क्या करना है। ये जो नौकरी मांगते हैं, नौकरी 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 नौकरी, तो जब नौकरी मिल जाती है फिर जिंदगी का सारा निजाम उसी में आ जाता है, सब कुछ फिर उसी में होता है। फिर उसके लिए फ्लैट भी देते हैं, फिर वो मकान भी होता है, फिर वो मेडिकल भी फ्री। उसे पता है लफ्ज नौकरी में एक पैकेज है, उसे पता है कि लफ्ज खाने में पेट का भरना है, उसे पता है कि लफ्ज पीने में प्यास का बुझना है, उसे पता है कि लफ्ज लिबास में सर्दी गर्मी से हिफाजत है, उसे पता है कि लफ्ज छत में मेरी प्रोटेक्शन और हिफाजत है। इसी तरह लफ्ज इश्क में क्या है, बस इसमें खो जाए। ये अल्लाह से वादा करें, अपने आप से वादा करें, मुझसे क्या करना कि 2 नफिल तो ऐसे पढ़ने हैं इस पूरे रबीउल अव्वल के अंदर कि अल्लाह आशिकी अता फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा, और मोहब्बत नहीं इश्क अता फरमा। और फिर जब आशिकी आएगी ना, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जतें इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। बस जब आशिकी आएगी फिर जिंदगी के दिन रात और होंगे, फिर अपने अंदर को सजाने का इसका सलीका आ जाएगा, फिर कहेगा मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। बस आशिकी मांगनी है, गिड़गिड़ा के मांगनी, लेकिन मांगनी वैसी है कि बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे। हमारे एक दोस्त थे, वो अक्सर मुझे देखते ना, कहते वह सोने दिया पुनना तू ही सोता पिया, न्याणे पुके ते आटा मुक्या पिया। मुझे ऐसे देख के ना कहते वह सोने दिया पुनना तू ही सोता पिया, न्याणे पुके पे ते आटा मुक्या पिया। ऐसी कहना कि बच्चे जो है वो बिलक रहे हैं, घर का आटा नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब मैंने कैसे दुआ मांगनी है, कुछ इस तलब से मांगिएगा, फॉर्मेलिटी वाली दुआएं ना मांगिएगा। हदीस में आता है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ अर्शों पे नहीं जाती, गाफिल दिल की दुआ, गाफिल दिल की दुआ अर्शों पे नहीं जाती। कोई इस अंदाज से दुआ मांगिएगा कि अल्लाह को तरस आ जाए, अल्लाह कहे कि इसको दे दो दे दो, मर जाएगा मर जाएगा, दे दो इसको, मर जाएगा, इस आशिकी में मर जाएगा, इसका कलेजा फट जाएगा, दे दो इसको, फरिश्तों जाओ इसको दे दो मेरे कमली वाले का इश्क। और जब कमली वाले का इश्क मिल जाएगा ना, हाँ खुदा जब हुस्न देता है निजाकत आ ही जाती है और खुद ब खुद सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा।
किसी ने पूछा हजरत विलायत कैसे मिलती है, पता कैसे चलेगा विलायत का? उसने कहा कि जब बलूगत होती है ना, बलूगत का पता खुद ब खुद बालिग को चल जाया करता है। उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा तू बालिग हो गया, मां बेटे को, नहीं, उसे बलूगत का पता खुद चल जाता है। जब बेटी बालिग हो जाती है उसको बलूगत का पता चल जाता है, जब बेटा बालिग होता है उसको बलूगत का पता खुद चल जाता है। जब विलायत मिलती है, जब इश्क मिलता है, जब प्यार मिलता है, जब कुर्ब मिलता है, जब मोहब्बतें मिलती हैं, फिर खुद ब खुद पता चल जाया करता है। तो मांग के देख तो सही, देख तो सही कैसे मिलता है। ये 2 नफल तो पढ़ने हैं और सिर्फ इश्क ही इश्क मांगना है, इश्क ही इश्क मांगना है। उसमें मेरा हिस्सा भी थोड़ा सा रख लेना, क्योंकि मैंने बताया। ये नहीं कहना अल्लाह इसको भी दे, मेरे लिए सिर्फ इतना कह देना कि इसको भी दे, क्योंकि इसने बताया है, ये रहबर है, इसको भी दे दे। आपके आसान होगा, आपकी मेहरबानी होगी। इश्क मांगना है। मैंने एक बंदे को एक दफा कहा, कई साल पहले की बात है, मुझे कहने लगा रबीउल अव्वल आ रहा है तो कोई अमल बताए। मैंने कहा एक तो दुरूद पाक की लिमिट अपने इर्द गिर्द बढ़ा लेनी है, एक। दूसरा, रबीउल अव्वल का अमल यह है कि हर रबीउल अव्वल में फैसला करना है कि इस रबीउल अव्वल में मैंने इतनी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में दाखिल करना है और इतनी गुनाहों और गुमराहियों को छोड़ना है और इतने जो है रिवायती और जिंदगी के जो है मौजूदा जो अंदाज है वो मैंने छोड़ना है। और तीसरी चीज, 2 नफल पढ़िए जो मैंने अभी अर्ज किया, और पढ़ इस अंदाज से कि जैसे को पागल और दीवाना होता है, इस अंदाज से पढ़। उसने ये फैसला किया, मुझे आके कहने लगा कि मैं ऐसे सोया हुआ था तो नफिल पढ़ के मैं सो गया। मैंने इशा के वक्त नफिल पढ़े, मैं सो गया, और सोते हुए ना कहने लगे मेरी वालदा फौत हो गई है। वालिद पहले फौत हो गए थे, वालदा कुछ करीब अरसे में फौत हुई। ऐसे मैंने महसूस किया मेरी वालदा आ गई है, और मेरी वालदा आके ना मेरे माथे पे हाथ रखा और कहने लगा तू थका हुआ है, सोया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तू थक गया है, लेकिन आज जो तूने नफिल पढ़े हैं ना, तूने तो मांगा है इश्क, लेकिन तेरे मांगने की क्या बात है कि हमारी कब्रें जो है नूर से भर गई, कब्रें नूर से भर गई। और बेटा अगर तू ऐसे नफिल पढ़ता रहे तो तेरी मेहरबानी है, पढ़ता रहे तो तेरी मेहरबानी है। किताबों में आता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।